नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में कब होना है चुनाव, उसका ऐलान आज हो गया है और 10 तारीख से चुनाव की शुरुआत होगी, यानी कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा या फिर मणिपुर, अलग अलग प्रदेशों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि चुनाव आयोग के पास उसके ऊपर बड़ी चुनौती है चुनाव कराने की, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव कराने के पक्ष में थे और चुनाव आयोग के पास इतनी बड़ी चुनौती थी कि कोविड के काल में किस तरह से चुनाव कराया जाएगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा, तो मणिपुर और गोवा का चुनाव अगर देखा जाए तो 2 चरण का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अलग अलग उत्तराखंड, पंजाब का अगर जिक्र करें 1 चरण में चुनाव हो जाएगा। वहीं चुनाव के नतीजे सामने आएंगे 10 तारीख को, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार प्रदेशों में बन रही है। उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आएगी, यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, या फिर उत्तराखंड में जो चेहरे मुख्यमंत्रियों के पिछले कुछ दिनों में बदले हैं, क्या उसका खामियाजा कहीं उत्तराखंड सरकार को भुगतना तो नहीं पड़ेगा, या फिर ये उत्तराखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेज तर्रार दौरों को लेकर, जनसभाओं को लेकर क्या वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। यह भी बड़ा और अहम विषय है जानने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया आने वाले चुनावों का। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंक सुनिए। क्या कुछ कहते हुए चुनाव आयुक्त नजर आए थे। The first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January, and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. We will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January, last date of nominations 1st February, scrutiny of nominations 2nd February, last date of withdrawal of candidature 4th February, and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase, issue of notification 27th January, last date of nominations 3rd February, scrutiny of nominations 4th February, last date of withdrawal of candidature 7th February, and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February, last date of notification, last nomination 8th February, scrutiny of nominations 9th February, last date of withdrawal of candidature 11th February, and date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase
and Manipur second phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last year, the Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally. साइकिल, बाईसाइकिल, पदयात्रा और रोड शो सबको रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी तक अभी रोक लगाई गई है। 15 तारीख को फिर से इस पूरे मसले को लेकर समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई चुनाव आयोग की ओर से, उसकी बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। चुनाव आयोग की 10 बड़ी बातें समझिए। तकरीबन 18 करोड़ 3 लाख मतदाता मतदान इस बार करने वाले हैं। 24,09,000 मतदाता पहली दफा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं, यह बड़ी बात है इस बार की। इसके अलावा पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे ज्यादा रहेगी। पोलिंग स्टेशन में 16% की बढ़ोतरी की गई है। जो पोलिंग बूथ है वो तकरीबन 16% बढ़ाए गए हैं। गैर कानूनी पैसे, शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गैर कानूनी पैसा और शराब पर कड़ी पाबंदी रहेगी, नजर रखी जाएगी। सभी चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी। जो भी चुनाव कर्मी होंगे पोलिंग बूथ पर सभी वैक्सीनेटेड होंगे। 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल, बाईसाइकिल रैली सब पर रोक लगा दी गई है। सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जितने भी कार्यक्रम होंगे सबकी वीडियोग्राफी होगी। दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा भी करनी होगी। कौन किस पर कौन सा आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी जानकारी देना होगी सभी दलों को। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा, यानी कि 40 लाख का ही इस बार तय सीमा की गई है पैसों की। मणिपुर और गोवा में 28 लाख रुपए ही खर्च सीमा। मणिपुर और गोवा में खर्च सीमा 28 लाख रुपए कर दी गई है। चरण किस तरह से, कितने चरण में, कहां चुनाव होगा वो भी हम आपको अब बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि आज चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण माफ कीजिएगा होंगे और 7 चरण कब कब होंगे वो भी तारीख बता दी गई है उत्तर प्रदेश में। इन सब के बीच में पहले चरण में कितनी सीट पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में कितनी सीट पर चुनाव होगा, यह भी आज डिटेल कर दी गई है, बता दी गई है। पहले चरण में 10 फरवरी को कहां कहां वोटिंग होगी ये भी हम आपको बताते चलेंगे और फेज वाइज कहां कहां वोटिंग हो रही है वो हम आपको बताते हैं। तो तारीखों का ऐलान जो किया गया है, चरण किस तरह से निर्धारित किए गए हैं वो समझिए। जो तारीखों का ऐलान है 7 चरणों में होगा। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। तो अगर 23 फरवरी का जिक्र करें तो चौथे चरण और 27 फरवरी को 5वें चरण का होगा मतदान। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में छठा चरण 3 मार्च को आएगा। 7वां चरण दरअसल 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। 10 मार्च को हमें आपको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार।
तो पहला चरण 10 फरवरी को होगा, पूरा 1 महीना होगा जब तारीखों का ऐलान के बाद नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा पहला चरण पंजाब में एक ही चरण में मतदान होगा और वो है 14 फरवरी। 14 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है और 10 मार्च को यहां पर मतगणना होगी। 10 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे पंजाब में। इसके अलावा गोवा में भी एक चरण में मतदान होगा, वो है 14 तारीख, यानी कि 14 फरवरी को गोवा में भी मतदान होगा, वोटिंग होगी और 10 मार्च को बाकायदा नतीजे आ जाएंगे गोवा के भी। इसके अलावा उत्तराखंड में 14 फरवरी को पहला चरण होगा, एक चरण में उत्तराखंड में भी चुनाव होना है। इस बार का वो तारीख है 14 फरवरी की। 14 फरवरी को पहला चरण होगा, 10 मार्च को उत्तराखंड में भी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मणिपुर में 2 चरण में मतदान होना है। इस बार 27 फरवरी को पहला चरण होगा, दूसरा चरण 3 मार्च को होगा और नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। यानी कि 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान मणिपुर में होने वाला है, 3 मार्च को दूसरे चरण का मतदान मणिपुर में होगा और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। इन सबके बीच जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर रिएक्ट किया है, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया तारीखों के बाद दी है। क्या कुछ दोनों ने कहा है, सुनिए जरा। प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करेंगे और अखिलेश यादव दरअसल जो रोक लगाई गई है, वर्चुअल रैली का जिक्र किया गया है, उस पर थोड़ी सी आपत्ति जरूर जताते हुए नजर आए हैं। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ कराते हैं मेहमानों का हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब डिबेट हम करते हैं इस पर क्या कुछ रहता है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ नवदीप छावड़ा इस समय पंजाब से जुड़ रहे हैं, दिलीप यशवर्धन है उत्तराखंड से हमारे साथ और अनूप त्रिपाठी है हमारे साथ लखनऊ से। जानने की कोशिश करते हैं, अनूप से जानेंगे, लेकिन उत्तराखंड चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यशवर्धन है, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड। हम ये बताते चलें आपको कि उत्तराखंड से हमारे साथ कुछ देर में ब्यूरो चीफ हमारे उत्तराखंड के धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ेंगे। आपको ये बताते चले, साथ ही साथ आपको बताते चले, सबसे पहले नवदीप छावड़ा के पास चल रहे हैं, हमारे रीजनल हेड है पंजाब के। नवदीप छावड़ा, जरा बताइए मुझे क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, एक चरण में मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, 14 तारीख को मतदान होगा। तैयारियां किस तरह से हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दल पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं पूरे जोश में? देखिए, बिल्कुल अब्दुल, जैसे कि उम्मीद थी, हालांकि वैसा नहीं हुआ। हालांकि कोरोना को देखकर लग रहा था कि शायद पंजाब के अंदर इस बार चुनाव 2 या 3 चरण के अंदर होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक ही चरण के अंदर ये चुनाव जो है वो कंप्लीट करने का ऐलान किया है पंजाब के अंदर 14 फरवरी। और अब देखिए, ज्यादा दिन नहीं मिले। अभी थोड़ी देर पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान है, अकाली दल के नेता, वो भी कह रहे थे कि स्वागत है इस फैसले का, लेकिन कहीं ना कहीं 30 से 35 दिन पंजाब के लोगों को या पंजाब के नेताओं को मिलेंगे प्रचार के लिए, समझने के लिए। और अगर नॉमिनेशन से लेकर तमाम प्रक्रिया देखें तो अब्दुल, जो स्क्रूटनी के बाद जो नामांकन वापस लेने की तारीख होती है वो 31 तारीख है और 14 तारीख को पंजाब के अंदर चुनाव है। तो ऐसे में जो सही मायने में जो चुनाव प्रचार के लिए केवल और केवल 13 दिन जो है वो पंजाब के जो उम्मीदवार है सही मायने में उनको मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए,
जो बड़ी रैली है, जो हम कह रहे थे बड़ी रैलियां अब नहीं होंगी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। डोर टू डोर भी अगर जाना है तो 5 लोगों के साथ जाना है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद पंजाब के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो एक प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या फिर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन जो है वो किया जाएगा। और साथ साथ 6 बजे उनकी तमाम जितने डिप्टी कमिश्नर है पंजाब के, एसएसपी हैं, उनके साथ भी बाकायदा भी वो मीटिंग कर रहे हैं ताकि निर्देश दिए जाए किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल, तमाम जो दिशा निर्देश है उसका सख्ती से पालन जो है वो किया जाएगा। लेकिन एक बात तो अब्दुल तय है कि बड़ी रैलियां नहीं होंगी, केवल वर्चुअल तरीके से आपको करना होगा, या फिर अगर आपको डोर टू डोर कैंपेन करना है, और या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर स्टेट के जो गृह विभाग है उसके जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दिशा निर्देश है कि आउटडोर के अंदर 400 से या 500 से ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, तो आपको उसी के तहत ही रैली करनी होगी। ये कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग भी तैयार है, पार्टियां भी तैयार है, लेकिन अब देखना होगा जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस या फिर बीजेपी कब तक अपने अब उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हैं, क्योंकि उसमें श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी वो पहले अपना नंबर जो है वो ले चुकी है। अब्दुल ठीक है नवदीप, जाहिर तौर पर उत्तराखंड चलता हूं जरा मैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, क्या दिखता है आपको एक चरण में अगर मतदान हो जाएगा? क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कि क्या कोविड को मद्देनजर रखते हुए क्या चरण बढ़ाए जा सकते हैं। पोलिंग बूथ में तो हालांकि बढ़ोतरी हो रही है, क्या देखने को मिल रहा है, रिएक्शंस किस तरह से आए? बिल्कुल अब्दुल, जब सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तभी हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के मुख्यालयों पे गए, और बीजेपी के मुख्यालय में उनके प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी हम लोग काफी देर तक बैठे रहे। और जब सुशील चंद्रा बता रहे थे कि एक ही चरण में उत्तराखंड और गोवा में चुनाव होंगे, तो उन लोगों ने संतोष व्यक्त किया, क्योंकि उत्तराखंड छोटी जगह है, 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक जैसे गोवा में सिर्फ 40 विधानसभा सीटें हैं, तो प्रायः एक ही चरण में होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो लगभग यहाँ पे 10 गुना अधिक केसेस आ रहे हैं पहले की तुलना में। तो पूरी उम्मीद थी कि शायद चुनाव आयोग 2 चरणों में यहाँ का चुनाव कराए, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके अपने लिए मुफीद बताया है कि एक ही चरण में चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब फिर उत्तर प्रदेश भी और अन्य राज्यों में भी यहाँ के नेताओं को चुनाव प्रचार में जाना होता है, तो उनके लिए तो यह फैसला काफी सियासी रूप से काफी अच्छा वो बता रहे थे। और उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की, मदन कौशिक से जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा हम जीतेंगे। 1 लाख करोड़ का जो मोदी का किया हुआ यहाँ पे काम है भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का पिछले 5 सालों में, हम जीतेंगे इस चुनाव को। और उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको बीजेपी पूरी तरह से पालन करेगी, क्योंकि बीजेपी को यह अच्छी तरह से पता है कि कोविड का खतरा कितना है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उनकी सरकार इसी से निपट रही थी। ठीक है, वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, और जाहिर तौर पर इस बात की तस्दीक हर कोई दे रहा है और दम भर रहा है कि वो जीतेगा। मैं यशवर्धन जी के पास चल रहा हूँ। यशवर्धन जी, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, किस तरह से, क्योंकि एक्शन जाहिर तौर पर कड़ा लिया गया है, वर्चुअल रैली का जिक्र किया गया है, डोर टू डोर आप नहीं कर सकते हैं, रोड शोज बंद कर दिए गए 15 तारीख तक। चुनौती जितनी बड़ी है उतने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं आयोग की ओर से। अब्दुल जी, परीक्षा की घड़ी है, चुनौती बड़ी है, और ये सारी राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारी है, सत्ता ने जो काम किया है उसकी परीक्षा की, उसके लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है, और विपक्ष ने जो अपने दावे किए हैं उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। अब ये लोग अपना एग्जाम जो लिखना चाहते हैं उसके लिए 2 महीने का समय है, अब ये सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, इनके पास और कुछ नहीं, जनता को अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं बंद करी गई है, 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ये कहा गया है, ये कहा गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग बंद नहीं। और मैं इस चीज को अच्छा मान रहा हूं। आप याद करिए, पहले चुनावों में जनसंपर्क हुआ करता था, जो नेता होता था जिसको चुनाव लड़ना होता था वो डोर टू डोर जाया करता था, लोगों से मिला करता था। लेकिन जब से ये रैलियों का दौर शुरू हुआ, जनसभाओं का दौर शुरू हुआ, तब से प्रत्याशी ने घर घर जाना बंद कर दिया। तो अब प्रत्याशी के लिए एक बार फिर से ये मौका है कि पुरानी परिपाटी का इस्तेमाल करे, लोगों से जा जाकर मिले। और पहले पर्चे बांटे जाते थे कि हम क्या करेंगे, वो पर्चे फिर से बांटने का समय आ गया है उसको, और अच्छा मौका है, ये अच्छा क्योंकि मौका बहुत है। सारे लोग ऐसे होते
जिनको राजनीति से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग अपने प्रत्याशी के चेहरे भी नहीं पहचानते। होर्डिंग बैनर देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्षेत्र का प्रत्याशी है, लेकिन वो रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो ये अपने चुनाव प्रचार में रूबरू होने का बढ़िया मौका। दूसरा, ये इस बात की बड़ी परीक्षा होगी कि किसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है रूट लेवल तक। ये पार्टियों के लिए अब चुनाव का समय नहीं है, ये इस समय चुनौती का समय है, और ये चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र। चलिए ठीक है, एक अहम खबर आ रही है, मैं उस ओर रुक कर लेता हूं, उसके बाद मैं अनूप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त जो आ रही है, दरअसल लखनऊ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने वीआरएस ले लिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण नौकरी छोड़कर अब चुनाव लड़ेंगे। असीम अरुण ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया, यानी कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में असीम अरुण, और उन्होंने वीआरएस ले लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं असीम अरुण, और कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे हैं वो। और अब खबर यह है कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या उनको टिकट दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा? जरा मुझे अनूप त्रिपाठी इस पूरी खबर की डिटेल दीजिए। असीम अरुण ने वीआरएस लिया, अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जरा डिटेल क्या है इस खबर की, बताइए। देखिए अब्दुल, असीम अरुण उत्तर प्रदेश के जो पुलिस विभाग है उसके सीनियर आईपीएस अफसर हैं। इससे पहले वो एडीजी रहे हैं 112 जो इमरजेंसी आपातकालीन पुलिस की सेवा है उत्तर प्रदेश की, उसके वो एडीजी थे। इससे पहले वो एटीएस में रहे हैं, एटीएस में आईजी रहे हैं। तमाम पदों पर वो महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और मूलतः वो कानपुर से लगा हुआ जिला है कन्नौज के वो मूल रूप से रहने वाले हैं असीम अरुण। प्रेजेंट टाइम में वो कानपुर के कमिश्नर हैं। हालांकि उन्होंने अब वीआरएस ले लिया है और वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। अब तक जो खबर आ रही है अब्दुल कि वो कन्नौज की जो सदर विधानसभा सीट है वहां से वो लड़ने जा रहे हैं। और असीम अरुण ने अपनी बीजेपी ज्वाइनिंग का, वीआरएस लेने का सार्वजनिक तौर पर खुद ऐलान किया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका खुलासा किया है। अब्दुल, असीम अरुण के पिता अनूप त्रिपाठी, कन्नौज की सदर सीट से असीम अरुण को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारने वाली है। तो क्या एक बार फिर से वो पैराशूट कैंडिडेट का जो जिक्र लगातार होता है चुनावों में, फिर से पैराशूट कैंडिडेट ही देखने को मिल रहे हैं? जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं, जिनको आस रहती है कि टिकट मिलेगा, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए अब अब्दुल जी, अगर हम कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज में जिलाध्यक्ष बीजेपी के होंगे, तमाम और बड़े वर्कर होंगे, पुराने नेता होंगे जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे होंगे और उन्होंने उम्मीद पाल रखी होगी कि 2022 का चुनाव लड़े होंगे। कई कन्नौज में कई दूसरे दलों से भी नेता बीजेपी में आए छोड़ के अपनी पार्टियां, उन्होंने भी टिकट का अंदेशा लगा रखा होगा। लेकिन कन्नौज सदर से असीम अरुण को बीजेपी ने टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि वो नई राजनीति कर रहे हैं, वो जिताऊ राजनीति कर रहे हैं कि कैसे हमें जीतना है चुनाव। असीम अरुण अब्दुल एक बेहद लोकप्रिय उत्तर प्रदेश पुलिस मशीनरी के एक बेहद लोकप्रिय अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं। और कानपुर से लेकर जो कन्नौज का इलाका है पूरा लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत तेज तर्रार अफसर वो हैं। अब वो जा रहे हैं, उन्होंने अलविदा कह दिया अपनी नौकरी को। देखना होगा कि वो कितना अपनी नई पारी जो शुरू करते हैं और अब यही जाहिर तौर पर देखना होगा कि नई पारी उनकी कैसी रहती है। लेकिन नवदीप छावड़ा, मैं आपके पास आ रहा हूं जरा। कुछ इसी तरह की खबर जो इसी दरअसल पहलू को आगे बढ़ाते हुए, जो पैराशूट कैंडिडेट्स का जिक्र करते हैं, ठीक है अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब टिकट की भगदड़ मचेगी कि भैया किसको टिकट चाहिए है, किसको नहीं चाहिए है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। पैराशूट कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया जा रहा है या दिया जाता है किसी भी राजनीतिक दल की ओर से, वो उसके लिए बेहतर है या फिर नुकसानदायक हो सकता है? देखिए दो बातें हैं। अभी अब देखा होगा कि अमृतसर से कुंवर विजय प्रताप, वहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। पंजाब के पूर्व जो है वो डीआईजी रहे हैं और खासतौर पर जो बेअदबी मामला था पंजाब के अंदर बहुत चर्चे, उसकी वो जांच भी कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वीआरएस लिया, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और आम आदमी ने उनको टिकट भी दिया।
लेकिन आप देखिए नेताओं का इधर उधर जाना चुनाव के आने के वक्त, ये बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है। खासतौर पर पार्टी ये चीजें तय करती है कि जो आदमी उनकी पार्टी के अंदर आ रहा है उसका जो लोकप्रियता ग्राउंड पर कितनी है, क्या ये टिकट को जिता पाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं विरोधता जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जो सालों से जो कार्यकर्ता है ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जब उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचती है या उनका जो नेता उनको टिकट नहीं मिलती तो विरोध पर उतरे। कल आपने तस्वीरें देखी होगी अब्दुल, जलंधर से कल तस्वीरें सामने आई थी, जब जलंधर के अंदर एक किसी पैराशूट नेता को टिकट दे दिया गया तो वहां पर राघव चड्ढा का विरोध होते दिखा और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में उलझते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो हर पार्टी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, जब पंजाब के अंदर पहले अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन था, लेकिन इस बार जो गठबंधन है वो बीएसपी के साथ है, अकाली दल का। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो टिकटें हैं जो उसका अदला बदल किया गया है। जिनको अकाली दल से टिकट नहीं मिली वो किसी और पार्टी का पाला बदलेंगे, और जिसको दूसरी पार्टी से नहीं मिली वो अकाली दल के अंदर आएंगे। तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन जो पार्टी आला कमान है वो ये चीजें, लेकिन धीरेन्द्र ये पैराशूट कैंडिडेट का तो जिक्र होता रहेगा, लेकिन आज जब ऐलान हुआ चुनाव की तारीखों का, उसके बाद अभी कुछ देर पहले हरीश रावत से बातचीत हो रही थी हमारी, और हरीश रावत जी से जब बातचीत हुई तो कांग्रेस का जिक्र हुआ, कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हुआ, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे बदले हैं मुख्यमंत्री के, उसके अलावा एक चेहरा जो नहीं बदला है वो प्रधानमंत्री का रहा है। उसके हमने देखे हैं प्रचार किस तरह से प्रधानमंत्री ने किया और वो करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा कुछ? लोकप्रियता है या कहे क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता है वो बरकरार है, और शायद इस बात को जो बीजेपी है वो बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए इस चुनाव में भी मुख्यमंत्री से भी बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है। उनके जो प्रचार रथ 70 विधानसभाओं के लिए निकले उसमें भी पहला फेस प्रधानमंत्री का है, और उससे छोटी फोटो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगी है। और लगातार आप देखिए तमाम प्रचार माध्यमों से जो प्रचार हो रहे हैं, या राज्य सरकार जब विज्ञापन कर रही थी तो उसमें भी तमाम जो बड़ा चेहरा था वो प्रधानमंत्री का था। तो निश्चित रूप से पार्टी को लगता है कि मोदी का जो मिरेकल है 2022 में भी बरकरार है, और वही मिरेकल इनको एक जादुई तरीके से सत्ता में दोबारा वापस ला सकता है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरा उसका एक और कारण है अब्दुल, कि प्रधानमंत्री का जब चेहरा होगा तो जो मुख्यमंत्री बदलने की वजह से तमाम गुट बन गए हैं पार्टी में, वो भी संतुलन में बने रहेंगे। डैमेज कंट्रोल का जो जिक्र होता है, चेहरा जो है प्रधानमंत्री का होगा। ठीक है। और ये कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो पार्टी इस बात को समझते हुए अभी भी बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का ही ठीक है। लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, जरा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की है। अजय कुमार लल्लू क्या कहते नजर आए, उनको जरा सुनिए। पहले राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आप बाइक रैली नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, चुनावी रैलियों को नहीं कर सकते, वर्चुअल ही रैली को संबोधित करना है। इस चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसा अनुभव रहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है? देखिए, थोड़ी नया है, चुनौती है, लेकिन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुनियादी सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है, सरकार के दमन का मुकाबला किया है कांग्रेस ने, कार्यकर्ताओं ने जेल काटी है, किसान, नौजवान, गांव गरीब की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। खासकर जो हमने प्रतिज्ञा लेकर जो हम आए थे कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल आप, 2500 रुपये में धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपया कुंटल गन्ने का दाम लेंगे। और मैं समझता हूं कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं उनके विनियमितीकरण, इंटर पास लड़कियों को जो एंड्रॉयड फ़ोन और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को जो स्कूटी देना, 40% लड़कियों को टिकटों में भागीदारी, मैं समझता हूं कि ये एक जो प्रतिज्ञा है ये अपने आप में बड़ा घोषणा है, और जनता उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के तरफ देख रही है और उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे। कोविड काल चल रहा है, चूंकि प्रोटोकॉल के तहत पूरे चुनाव होने हैं सर, लेकिन इस कोविड को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए था, क्या आप उसके लिए चुनाव के लिए तैयार थे?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो आईटी में आपसे ज्यादा मजबूत, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत नजर आती है। उसके पास टीम बड़ी है, क्योंकि अब पूरा डिजिटली चुनाव होगा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? थोड़ी चुनौती है लेकिन करेंगे, और उम्मीद है कि प्रयास करेंगे कि अच्छा हो, बेहतर हो, और उत्तर प्रदेश की जन जन तक पहुंचे, लोगों के गांव गांव पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और संपर्क संवाद कर सके। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा कैंपेन आपने उत्तर प्रदेश में चलाया, प्रियंका जी खुद इसको लीड कर रही हैं, और यूथ है, साथ ही साथ किसान है, ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में खास होने वाले हैं। आपको लगता है कि डिजिटल के माध्यम से, डिजिटली प्रचार के माध्यम से आप ये सब बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे? मैंने कहा ना कि थोड़ी चुनौती है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम घर घर तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, जिस तरह पहुंचे, और हमें भरोसा है कि हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा, कांग्रेस सरकार। एक आखिरी सवाल सर, कोविड के साए में चुनाव हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि कोविड का एक तरफ दौर चल रहा है, लगातार केसेस सामने, ज्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में आप प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखकर कहीं ना कहीं बचाव की जरूरत है। लोग सुरक्षित रहें, ठीक ढंग से रहें, कोविड के नियमों का पालन करें, और खासकर हमारा भी यह धर्म है कि उनके जान जीवन की पूरी जिम्मेदारी और वो स्वस्थ रहें, इसका प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी एएनआई से बातचीत करते हुए ये सवाल उठाया था कि और जो पार्टियां हैं बीजेपी की तुलना में वो थोड़ा सा कमजोर हैं, तो उनको प्रचार में और स्पेस दिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। आपको लगता है कि बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं जो डिजिटली इतना परफॉर्म नहीं करती हैं, तो ऐसे में क्या उनको स्पेस ज्यादा दिया जाना चाहिए, पैसे से लेकर तमाम अन्य माध्यमों में? मैं समझता हूं कि जरूर इस मुद्दे पर हम अभी चर्चा करेंगे, और चूंकि अभी हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं है, बैठक हमारी चल रही थी इसके नाते, लेकिन देखते हैं तो फिर आगे बात करेंगे। तो अजय कुमार लल्लू जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो चुनाव होगा कोविड के साए में जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरह के मुद्दों उन्होंने उठाए हैं, इन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ राजवीर सिंह, जेके न्यूज, लखनऊ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार और भी बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कैसी तैयारियां हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। तो आज तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित होंगे और हमें पता चलेगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकारें बनने वाली हैं। आज चर्चा दरअसल इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र प्रताप है, नवदीप छाबड़ा है, दिलीप यशवर्धन है, और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप चौधरी अब जुड़ गए हैं। दिलीप यशवर्धन, जरा बताइए, देखिए अभी हम ब्रेक से पहले अजय कुमार लल्लू से बातचीत की। कांग्रेस कॉन्फिडेंस उसका किस तरह का नजर आ रहा है, और जो ऐलान किया गया है, और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है, वर्चुअल तरीके से कहा जा रहा है। एक नया जाहिर तौर पर एक्सपीरियंस होगा, लेकिन डिजिटली जो मजबूत होगा वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, ये माना जाए। बात जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत कह रहे हैं, और वो कह ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तैयार भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी अखिलेश जी ने भी कहा, अजय कुमार लल्लू जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी डिजिटल मोड में बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और शायद ये बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी इशारा कर रही थी कि डिजिटल मोड पे डिजिटल इंडिया हो जाना चाहिए, हो सकता है इलेक्शंस को लेकर भी इशारा कर रही हो। तो ये तो सत्य है कि डिजिटल वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अभी जो आपने लल्लू जी के कॉन्फिडेंस की बात की, तो कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अगर कॉन्फिडेंस दिखाई भी देता तो भी कॉन्फिडेंस वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा एक सवाल रहता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, अब जिसका भी स्लोगन देख लीजिए, हर आदमी कह रहा है 10 मार्च, बसपा कह रही है कि सपा साफ, भाजपा साफ, वो कह रहे हैं वो साफ, वो कह रहे हैं वो साफ, हर आदमी को साफ करने पे लगा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार बहुमत किसी का नहीं आएगा, सब थोड़ी थोड़ी सीटें लेकर के आएंगे और सब लोग हर जगह साफ हो जाएंगे, और फिर मिल करके एक जो अंग असेंबली तैयार होती है वो
असेंबली हो सकता हो तैयार हो, और डिजिटल वर्ल्ड में जाने की तैयारी सबको कर लेनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वर्चुअल की दुनिया है, ना कोरोना आया होता तो भी ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे एक तरफ तो सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं, और वर्चुअल मोड पर वोटिंग कराने की बात का प्रपोजल बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पर अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, स्पेशली जो आर्मी वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, जो अपने मत का अधिकार ठीक है। मतलब हम ये इसको ओवरऑल अगर देखा जाए अभी स्ट्रांग लेवल पर हमें नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम डिजिटली देखें, अनूप चौधरी, अगर हम देखें, आप भी अभी कुछ देर पहले जब रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि वहां तो चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह अब तो रोक लगी गई, जाहिर तौर पर तो पोस्टर वगैरह पूरी तरीके से अब हटाए जा रहे हैं। क्या कुछ सड़कों पर इस समय लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो आदर्श आचार लागू होते ही जो जिला प्रशासन है यहाँ पर जो होर्डिंग लगी थी या जो भी चुनाव प्रचार सामग्री जहां जहां लगी थी उसको हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो जहां जहां पे यानी सत्ता पक्ष की जो फोटो लगी थी, यानी कि राशन का जो वितरण हो रहा था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी थी, तो एक आदेश जारी किया गया है कि जो अब राशन बटेगा तो उस पर वो फोटो अब नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में उसका कड़ाई से पालन करने के लिए, कराने के लिए सरकार के साथ ही उनके अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन भी अपने अपने स्तर से जो है मुस्तैद हो चुका है। और जहां पे बड़ी होर्डिंग लगी हुई है प्रचार से जुड़ी हुई, किसी भी पार्टियों की हो, उनको जो है हटाना शुरू कर दिया है। ये काम लगभग जो है नगर निगम ने अभी शुरू किया। तमाम होर्डिंग लगी थी जो कई राजनीतिक दलों की थी, अब उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। ये लखनऊ से शुरुआत नहीं हुई, मतलब ये पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी भी उनमें से एक है, तो यूपी में भी जहां भी प्रचार सामग्री थी उनको हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अच्छा, और भी चीजें हैं, क्योंकि ये तो हटाने का कार्य शुरू किया गया है, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर जो कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहे थे, मैं यशवर्धन जी से कर रहा था, अजय कुमार लल्लू की बातों में भले ही वो जबान बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, लेकिन क्या वो फिजिकली लग रहा है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में वो कॉन्फिडेंस? देखिए, राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी जो है, अगर सत्ता पक्ष की, सत्ता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जो है पुनः वापसी की बात कर रही, 300 के आंकड़ा के जो है सीटें ज्यादा लाने की बात कर रही। समाजवादी पार्टी कह रही कि भाजपा साफ हो रही है, बसपा कह रही कि हम आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही हमारे, और आम आदमी पार्टी कहे वो कह रही कि हम आ रहे हैं। अगर बात करें कि जो सभी की जो है क्या है उनका जो स्टैंड है सभी पार्टियों का, अब एक बात इसमें खास तौर से यह है कि आज आदर्श आचार संहिता लग गई है, रैलियों पर फिलहाल 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, अगर एक बात देखी जाएगी तो इन लोगों ने अपने अपने स्तर से जो इनकी रैलियां थी वो पिछले दिनों इन लोगों ने सभी कर ली, चाहे जनविश्वास यात्रा हो भाजपा की, या विजय यात्रा हो समाजवादी पार्टी की, या मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे तमाम जो, या फिर जो है आम आदमी पार्टी की, इन लोगों ने अपने अपने स्तर से जो प्रचार करना था, जो जनसभाएं। देखिए, हर कोई राजनीतिक दल अपने दम भरता है और जाहिर तौर पर जो भी राजनीतिक दल होगा चुनावी मैदान में उतरेगा वो तो दम भरेगा ही। नवदीप छावड़ा, लेकिन एक और चीज है, पंजाब में क्या लगता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसने बहुत सारी चीजें तब्दील की हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, उसके बाद वो भटिंडा पहुंचे, वहां उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का असर पंजाब की जनता पर क्या पड़ेगा और वो क्या वोट पर कन्वर्ट कुछ होगा या नहीं हो सकता है? देखिए अब्दुल, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें या फिर पिछले 1.5 साल की बात करें, जब से पंजाब के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ और अकाली दल और बीजेपी का बिखराव हुआ, तो मैं मानता हूं कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण इलाका, वहां पर बीजेपी का जो पहले का वोट बैंक था उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, बहुत ज्यादा गिरावट आई। और आप देखिए कि 1 साल पहले पंजाब के अंदर जो निकाय चुनाव हुए, आप ये देख लीजिए कि पूरे पंजाब के अंदर
मुझे लगता 3 या 4 केवल पार्षद जो थे वो बीजेपी के पूरे पंजाब के अंदर जीत पाए। किसी भी एक शहर के अंदर, किसी भी एक सिटी के अंदर अपनी नगर कौंसिल को बचाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि जो पहले वोट बैंक था बीजेपी का शहरी क्षेत्र के अंदर माना जाता था कि शहरी इलाकों के अंदर मजबूत वोट बैंक है, लेकिन जहां पर बीजेपी के चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, वो भी अपनी नगर कौंसिल को नहीं बचा पाए। तो हम ग्राउंड पर ये कह सकते हैं कि एक गुस्से की भावना जो है, एक गुस्सा जो है वो बीजेपी को लेकर जरूर है। और यही कारण है कि पीएम का दौरे के दौरान जिस तरीके से किसान वहां पर सड़कों पर आए, तमाम चीज देखने को मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार या फिर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा दिल दिखाने के बावजूद, तीनों कानून वापस लेने के बावजूद भी अभी भी ग्राउंड के अंदर जो एक बीजेपी को लेकर जो जनाधार मजबूत होने की बात थी वो शायद अभी देखने को नहीं मिल रही। यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींडसा जो तीनों पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाने का, एक मजबूत गठबंधन बनाने का प्रयास पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं कर रहे थे, वो शायद अभी भी ग्राउंड पर होता नहीं दिख रहा। और यही कारण है, देखिए चुनाव अब घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी तक भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, सीटें तय नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ इसका सीधा सीधा जो फायदा है हम ये कह सकते हैं ग्राउंड पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो कांग्रेस से जब हालात थे अब्दुल वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो जमीनी स्तर पर काम होने थे या जिन 18 सूत्री एजेंडे को लागू करना था वो लागू शायद पार्टी नहीं कर पा रही थी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बाद ग्राउंड पर वो लोगों के साथ मिले, लोगों की समस्याओं को हल किया, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए। और आपने देखा होगा एक हफ्ता पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर उन्होंने वो 100 बड़े फैसले गिनाए और 100 फैसलों को इम्प्लीमेंट पंजाब के अंदर किया गया। तो यही कारण है कि इससे पहले जितने भी ओपिनियन पोल पंजाब अच्छा, के अंदर यही बिल्कुल कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड में भी है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, क्योंकि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री नए नवेले हैं, ऐसा नहीं है बहुत पुराने हो गए, और उनके सामने भी बड़ी चुनौती है, अभी भी जाहिर तौर पर चुनौती है कि किस तरह से उनको रिकवर किया जाए। वही सवाल था कि क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के भीतर पुष्कर सिंह धामी वो फिर से जनता पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का कायम करा पाएंगे, या फिर कांग्रेस इस वक्त वो नजर आ रही है कि हां आत्मविश्वास उसके अंदर है कि चेहरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा तब्दील हुए हैं, बदले हैं, इसलिए उनको फायदा मिल सकता है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएंगे। उसके साथ ही उनको अपना कैरियर बचाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी वो 45 साल के आसपास है और उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर हो सकता है अगर इस चुनाव में पार्टी दोबारा उनके नेतृत्व में वापस आती है तो। अब जैसे अभी नवदीप जी बता रहे थे कि 100 दिन होने पे जब चन्नी ने अपने 100 काम गिनाए, 100 दिन होने पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो काम गिनाए थे वो 400 के लगभग थे। 400 ऐसे फैसले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिए और उसको तुरंत धरातल पे उतारा गया। उसका जियो भी साथ साथ हुआ, उसके लिए बजट की व्यवस्था की गई और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ एक ये अच्छाई है कि उनके पास संगठन एक बहुत जबरदस्त और बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उनके पास, और यही शायद कांग्रेस के पास इसी चीज की कमी है। क्योंकि आज भी आप देखिए चुनाव की घोषणा हो गई है, फिर भी हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल में चेहरों को लेकर के झगड़ा बना हुआ है, जबकि वहां बीजेपी में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और वहां अभी भी चेहरे को लेकर के कोई विरोध संगठन के अंदर से उठता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो बीजेपी आलाकमान इतना मजबूत है, उसका संगठनिक ढांचा इतना मजबूत है कि वो इन चीजों पे ऐसे संतुलन को साधने में महारत रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी है उनकी राह काफी आसान हो जाती है बनिस्बत चन्नी के, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह बीजेपी की तरह उतना मजबूत नहीं है कि जो असंतुलन पैदा हो जाता है चेहरा बदल। ये जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया, अब वक्त ज्यादा नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से जब तारीखों का ऐलान हुआ तो हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश में मुकुट बिहारी वर्मा है, उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की इस पूरे मसले को लेकर। क्या उन्होंने कहा है वो सुनिए जरा। निर्वाचन आयोग की तरफ से देश के 5 राज्यों में
आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो अधिसूचना होती है चुनाव की वो आज जारी कर दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा ऐलान किया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 413 विधानसभा सीटें हैं और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश के मुकुट बिहारी वर्मा जी। सर, क्या तैयारियां हैं? हमारी तो शुरू से ही तैयारी चलती है। कारण ये है कि हमने मानकर रखा है कि विकास ही हमारा एजेंडा है और इस नाते गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान की हम चिंता करते हैं। गांव में सड़क बनी कि नहीं बनी, गांव में आवास, शौचालय, बिजली, गैस, राशन, दवाई, सफाई, इसकी चिंता करते हैं। वो आज से नहीं, 5 साल लगातार चिंता करते रहे और अब हमारा पन्ना प्रमुख तक बन गया है। पन्ना प्रमुख माने एक बूथ के में भी हमने 4-5 बंटवारे कर दिए हैं और वहां तक वो वॉच करता है किसी को मिला कि नहीं मिला, किसको कठिनाई तो नहीं है। इसलिए हम तो विकास पर चुनाव लड़ते हैं और जहां तक विकास के अतिरिक्त है तो भारत के स्वाभिमान का चुनाव भी साथ में होता है। और आज देख लें, भारत में जितना भी इस प्रकार की चीजें थी या उत्तर प्रदेश में जितनी भी, उत्तर प्रदेश को हम माना जाता है कि देवताओं का घर है, जहाँ राम है, कृष्ण है, शंकर है, सब यहाँ है, बुद्ध है, सबका हुआ है और सबके तीर्थ स्थलों का, सबके उन सारे उनको जिनको लोगों ने भुला देने की कोशिश किया था, उनको जगाकर दुनिया को बता दिया है कि भारत की पहचान क्या है। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना संक्रमण के 2 साल गुजरे, अब तीसरी लहर चल रही है, फिर मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि थोड़ी चुनौती बढ़ी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और आम जनता में, थोड़ा किसानों का मुद्दा रहा है, थोड़ा आम जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के खिलाफ, वो सारे मामले रहे, तो थोड़ी सी चुनौती आपको लग रही है कि है इस बार चुनाव में? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनौती बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों जो विषय आप बताते हैं, दोनों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक कोरोना के उसका है, कोरोना का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी मोदी जी की टीम ने निपटा है, शायद भारत के अन्य प्रदेशों में को तो नहीं निपट पाए, दुनिया में भी उदाहरण हो गया है कि हम कोरोना से इस प्रकार से निपटते हैं और लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए राशन की उपलब्धता केवल डबल इंजन की सरकार के कारण केवल केंद्र का ही नहीं, प्रदेश ने भी बराबर लोगों को कोरोना को की मार को सहने की क्षमता डेवलप कर दी है। सर, क्या लगता है, हम पूर्वांचल की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर पहले आपके साथी थे, अब वो जो है समाजवादी पार्टी के साथी हैं, क्या नुकसान करेंगे बीजेपी का पूर्वांचल में? देखिए, राजनीतिक चेहरे एक अलग होते हैं और उनकी अपनी आवाज होते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं, लेकिन मतदान तो गांव का गांव, गरीब किसान करता है और गांव में चले जाइए तो जो गांव का सामान्य जन है वो इस समय मोदी योगी कर रहा है। क्या लगता है सर कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पिछली बार करीब 325 सीटें थी बीजेपी की, इस बार क्या उम्मीद है, क्या तैयारी है, क्या आपको लगता है कितनी सीटें जीतेंगे? निश्चित रूप से हम 300 से ऊपर होंगे। 300 से ऊपर होंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार बनने वाली? भाजपा की बनेगी। मुख्यमंत्री दोबारा योगी जी बने? हाँ, योगी जी बनेंगे। तो आप थे मुकुट बिहारी वर्मा, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनौती जरूर है, बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ी है, कोरोना संक्रमण काल के चलते तमाम चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 का आंकड़ा एक बार फिर से पार करेगी। खैर, चुनाव होगा, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, क्या होता है ये देखना बेहद खास होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। देखिए, दावा हर कोई कर रहा है और जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है। यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए। यशवर्धन जी, देखिए, मुकुट बिहारी वर्मा हो या फिर तमाम लोग हो, अपना अपना दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार की चुनौती चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए भी है? अब्दुल, ये चुनौती हमेशा रहती है और विशेषतः जो सत्ता में बैठा होता है उसके लिए ज्यादा चुनौती होती है, क्योंकि उसी को परीक्षा से गुजरना होता है। विपक्ष तो ये कह के बच जाता है कि सत्ता ने अच्छा काम नहीं किया है। सत्ता को ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसने जो काम किया है वो संविधान के दायरे में है, जनहित में है, स्वार्थ हित में नहीं है, स्वयं हित में नहीं है, और ये जनता आकलन करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता
कभी भी काम पर आकलन नहीं करती। अगर काम पर आकलन कर रही होती तो पिछली बार समाजवादी पार्टी का काम बोल रहा था, लेकिन काम बोला नहीं, काम चुप हो गया और कमल खिल गया। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि काम पर जनता नहीं देती है, चेहरे पर जनता जाती है। अनूप चौधरी क्या लग रहा है? चेहरे पे भी नहीं जाती। अच्छा। ना, चेहरे पे जाती तो पिछली बार भारतीय जनता किस पर पार्टी के जाती बहुत है? सारे ऐसे चेहरे चुनाव जीत गए थे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी आपके के बहुत सारे मुताबिक ऐसे फिर चेहरे जीत गए थे। जनता कहाँ जाती है? जनता जाती है जातिगत चीजों पर। अच्छा, मतलब आप धार्मिक भी चीजों आप पर, कह रहे हैं। क्षेत्रीय समीकरण पर। अनूप चौधरी, क्या वाकई में इस बार भी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देखने को मिला है, हावी रहा है या है? अनूप तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही। चलिए, क्या लग रहा है नवदीप छाबड़ा, क्या क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण इस बार भी मायने रख रहा है पंजाब के भीतर? देखिए, बिल्कुल पंजाब के अंदर अगर बात करें तो हालांकि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी नहीं रहता है अब्दुल, लेकिन हम ये मान सकते हैं क्योंकि पंजाब की सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और पंजाब में आज तक जो ज्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो सिख कम्युनिटी से आते रहे हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदू आबादी है पंजाब के अंदर। तो हिंदू सिख आबादी के अंदर कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये मिश्रण जरूर रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जातीय समीकरण जो बाकी राज्यों के अंदर जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, वैसी स्थिति पंजाब के अंदर नहीं है। हाँ। मुद्दे अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और जो पंजाब के साथ जो वादे किए गए थे। धीरेन्द्र प्रताप, यही सवाल में, हाँ, समय खत्म हो रहा है। धीरेन्द्र, यही सवाल आपसे भी है, उत्तराखंड में क्या क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण देखने को मिल रहा है इस बार? बिल्कुल, देखिए अब्दुल, यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी जो जाति समीकरण तो बहुत गौण है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण जरूर रहा है। और शायद यही कारण रहा है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होगा तो मुख्यमंत्री उनका गढ़वाल से होगा, और अगर गढ़वाल का प्रदेश अध्यक्ष है तो मुख्यमंत्री जो है कुमाऊं का होगा। और मान लो जो पार्टी विपक्ष में है, जैसे अभी कांग्रेस की बात करें तो उनका प्रदेश अध्यक्ष अगर गढ़वाल से है तो कुमाऊं से कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आपने देखा होगा इसमें कांग्रेस पार्टी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रीय देखने को मिलता है, वहां क्षेत्रीय समीकरण जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़े। अनूप, आवाज आ रही है आपको? अनूप, बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर गए हैं, इस बार अनूप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर यशवर्धन, मुझे क्लोजिंग कमेंट दीजिए और फिर हम क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा आपका आज चुनाव की तारीखों के बाद? चुनाव की तारीखें आ गई हैं, एग्जाम की तिथि निर्धारित हो गई है। अब राजनीतिक पार्टियों को अपनी पढ़ाई एग्जाम देना है, ईमानदारी के साथ करनी है, नकल की बात नहीं करनी है। जो असल है उन असल मुद्दों पर लेकर के चुनाव लड़ना है, जनता के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाना है। जातिगत समीकरण रहते हैं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जातिगत समीकरण नहीं होते तो हर राजनीतिक पार्टी में जातिगत कपूस नहीं बनते, माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं होती। बिल्कुल सही, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो संविधान हमारा कहता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संविधान के दायरे में जो संवैधानिक धर्म है राजनीतिक पार्टियों का, जो जनता के असली मुद्दे हैं उन पर लड़िए, उनको लेकर के जनता के बीच आइए। जो इन मुद्दों पर बात करेगा जनता उनसे प्रभावित होगी, और देश की ओवरऑल तरक्की होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। जाति विशेष की, किसी प्रजाति विशेष की, क्षेत्र विशेष की तरक्की से देश तरक्की नहीं करेगा, लेकिन देश तरक्की करेगा तो सबके सब अपने आप तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी। नवदीप छाबड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी। और अनूप चौधरी और अनूप त्रिपाठी, आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसे यशवर्धन जी कह रहे थे, एग्जाम की डेट आ गई है, डेट शीट आ गई है बाकायदा। अब जो तैयारी पूरे 5 साल की है राजनीतिक दलों ने, जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने भी, उसके बाद अब बस उसको रिवाइज करने की जरूरत है, यानी कि रिवीजन का वक्त आ गया है। और फिर एग्जाम की डेट पर एग्जाम दीजिए। रिजल्ट तो 10 तारीख को देखेंगे, 10 मार्च को, कौन रिजल्ट में पास होता है कौन फेल। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें जारी है।